آغاز ہے، ہم بہت ساری باتیں آغاز میں ہی اگر سیکھ لیں تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آمین۔ ابھی آپ کے پاسٹر صاحب نے کہا کہ جب خدا نیا سال دیتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بہت ساری باتیں کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے استثناء کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت تک کلام مقدس کو ہم تلاوت کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ استثناء اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت تک کلام مقدس کو تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے، جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر توجہ دیجئے، مرکزی آیت ہماری 12ویں آیت ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ خدا کے کلام کے لیے سب بولیے آمین۔ اونچی آواز میں بولیے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم بنی اسرائیل کے سفر کے تعلق سے بات کریں گے کہ جو سفر قوم بنی اسرائیل نے کیا۔ میں جب اس حوالہ کو دیکھ رہا تھا تو دو بڑی خوبصورت تصویریں، دو پکچرز میرے سامنے تھی۔ ان میں سے ایک تصویر تو قوم بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل کر ملک کنعان میں پہنچنے کی تصویر، یعنی کہ غلامی کے گھر سے نکلنے کے بعد وعدہ کی سرزمین تک پہنچنے کی پکچر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامہ کے اندر ایمانداروں کا سفر، پرانے عہد نامہ کے اندر قوم بنی اسرائیل کا سفر، لیکن نئے عہد نامہ میں ایمانداروں کا سفر، اس دنیا سے لے کر مسیح کی بادشاہی کا۔ قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے ملک کنعان تک، لیکن ایماندار کی زندگی کا سفر جو ہے وہ اس دنیا سے لے کر خدا کی بادشاہی تک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم استثناء کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں موسیٰ کی وہ باتیں جو قوم بنی اسرائیل کو بتائی گئی، انہیں سکھائی گئی، انہیں بتایا گیا، ہم اس پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو کیا بتایا کہ جس ملک میں تم جا رہے ہو وہ ملک جو ہے وہ ملک مصر سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس ملک کی سرزمین ملک مصر سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. وہاں پر خوراک وافر مقدار میں تمہیں ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ دو پکچرز میرے سامنے ہیں. ایک قوم بنی اسرائیل کی پکچر, دوسری ایمانداروں کی زندگی کی پکچر. اگر قوم بنی اسرائیل سے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ وہ تمہیں غلامی کے گھر سے نکال کر وعدے کی سرزمین پر لے جائے گا, اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے, وہ وادیوں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے, لیکن ایمانداروں کے لیے خدا کا اس سے بڑھ کر اور بھی وعدہ ہے. صرف ملک مصر سے نکلنے کے بعد قوم بنی اسرائیل وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر دودھ اور شہد ہے, لیکن ایمانداروں کے لیے یہ کہا گیا ہے جب وہ روح زمین سے جائیں گے آسمان پر دودھ اور شہد کے ساتھ ساتھ وہاں پر سونے کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی ان کو لیے تیار ہے. اس لیے ایمانداروں کے ساتھ جو ہے یہ ایک بڑا وعدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہاں پر آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ملک مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو ایک بڑی بات سکھا رہا ہے, اور وہ بات کیا تھی کہ اس ملک میں جس میں وہ پہنچنے کو تھے اس ملک کے اندر ان کی زندگی مختلف ہوگی, اور اس زندگی میں انہیں کرنا کیا پڑے گا, کیونکہ اس ملک میں تو یہ غلام نہیں ہے, وعدے کی سرزمین پر تو یہ غلام نہیں ہوں گے. ملک مصر میں کیا تھے؟ غلام. ملک مصر میں قوم بنی اسرائیل کیسی تھی؟ جاگیے تھوڑا سا. ملک مصر میں قوم بنی اسرائیل کس طرح کی زندگی میں تھے؟ غلامی میں. وہ دکھ میں تھے, وہ مصیبت میں تھے, وہ سخت محنت کرتے تھے, وہ دکھوں میں رہتے تھے, لیکن وعدے کی سرزمین میں ان کی زندگی مختلف تھی. انہیں وہاں پر غلامی کی زندگی نہیں ملی, انہیں وہاں پر پریشانیوں کی زندگی نہیں ملی, لیکن موسیٰ ایک بات بار بار انہیں سکھاتا تھا, اور وہ بات کیا تھی کہ تمہیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں کس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا جو تمہیں غلامی کے گھر سے نکال کے لایا ہے, اب وہ تمہیں وعدے کی سرزمین میں لے آیا ہے, لیکن اس سرزمین میں تمہیں کچھ اور سخت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ کام کیا ہے کہ تمہیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. دوسری بات جو آج کلیسیا کے لیے خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے, وہ سال جس میں سے آپ نکلے ہیں, سال کے آغاز میں جو خدا نے بات میرے دل میں ڈالی وہ سنیے. وہ سال جس میں سے آپ نکل کر اس سال کے اندر داخل ہوئے ہیں, ابھی آپ سال کے آغاز میں ہیں, ابھی بہت لمبا ٹائم سال کے چینج ہونے میں پڑا ہے. توجہ دیجیے اس بات پر. ہو سکتا ہے پچھلے سال کے اندر آپ نے مشکلات کا سامنا کیا ہے, آپ نے دکھوں کا سامنا کیا ہے, آپ نے بیماری کا سامنا کیا ہے. کئی سال آپ کے بیماری کے اندر گزر گئے, کئی سال آپ کے مصیبتوں سے لڑتے ہوئے گزر گئے, کئی سال بے روزگاری کے اندر گزر گئے, کئی سال پریشانیوں کے اندر گزر گئے, لیکن خدا آپ کو اس سال میں سے نکال کے اس سال کے اندر لے آیا ہے. اس سال میں خدا نے آپ کے لیے ایک بڑی امید پیدا کی ہے. آپ کو اس سال کی نسبت اس سال میں خدا ایک بڑا کام دینے والا ہے, اور وہ کوئی سخت محنت کا کام نہیں, بلکہ اتنا کام کیجئے کہ خداوند اپنے خدا پر توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے. خدا آپ کے سال کو بدل دیا ہے, اب وہ آپ کے وقت کو بدلے گا. نہ آپ کی پریشانیاں رہیں گی, نہ آپ کے دکھ رہیں گے. اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں, جب قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہیں تو انہیں ملک کنعان کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. ملک کنعان کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے.
खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला, लेकिन अब कनान की सरजमीन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें कनान की सरजमीन का पता नहीं है कि वहां पर क्या होगा। अब वो तो बातें जो मूसा ने बता रहा था उसकी बातें सुनते जा रहे थे, लेकिन हकीकत में तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं था। एक बड़ा मुल्क उनके सामने है, लेकिन पता नहीं कि वो मुल्क होगा कैसा। इसी तरह मेरे अजीजों, 1 साल का लंबा अरसा अभी आपके सामने है। कोई आने वाले महीने को बेहतर तरीके से नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। कौम बनी इस्राइल मुल्क कनान को नहीं जानते थे। अगर कौम बनी इस्राइल मुल्क कनान को नहीं जानते थे तो ये साल एक लंबा साल हमारे सामने है। हम आने वाले कल को नहीं जानते, लेकिन मूसा एक बात बार उन्हें कहता था कि तुम्हें खुदा पर तवक्कल करने की जरूरत है, तुम्हें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। एक ही बात बार बार उन्हें सिखाई जाती थी कि तुम अगर उस मुल्क में जाओगे तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुदा पर तवक्कल कीजिए, खुदा पर भरोसा कीजिए। चर्च, आज आपके लिए ये बात है, अगर खुदा आपको उस साल में से निकाल के इस साल के अंदर लेकर आया है, खुदा ने आपका साल तब्दील कर दिया है, खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। लेकिन एक काम कीजिए, तवक्कल कीजिए, भरोसा कीजिए, खुदा पर तवक्कल कीजिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, क्योंकि खुदा आपको इस साल में सरफराज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कौम बनी इस्राइल को गुलामी से निकाला गया, लेकिन साथ अभी हमने पढ़ा है कि वो मुल्क मिस्र जैसा नहीं है। वो मुल्क मिस्र जैसा, वो मुल्क मिस्र जैसा, वो मुल्क टोटली डिफरेंट है। और उस मुल्क के तल्लुक से कलाम मुक़द्दस में बताया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको इस साल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये साल पिछले साल जैसा नहीं है। अगर मुल्क मिस्र से निकलने के बाद खुदा का खादिम उन्हें कहता है कि वो मुल्क जिसमें तुम जा रहे हो वो मुल्क मिस्र जैसा नहीं है, लेकिन आज मैं खुदा का खादिम आपको ये कहना चाहता हूं, जिस साल में से आप निकल के आए हो ये साल आपके लिए मुख्तलिफ है, ये पहले जैसा नहीं है। पिछले साल में आपने दुख उठाए हैं, पिछले साल में मुसीबतें उठाई हैं, पिछले साल गम के अंदर रहे हैं, लेकिन इस साल में खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपके लिए आसमां खोलेगा। आप गुर्बत में रहे हैं, लेकिन मसीह गुर्बत में न रहेंगे। आप बेरोजगारी में थे, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा, क्योंकि ये साल खुदा ने आपके लिए और आपके घराने के लिए मुकर्रर कर दिया है। हालेलुया, आमीन। मुल्क कनान खुदा के लोगों के लिए खुदा ने मुकर्रर कर दिया, इसीलिए खुदा उन्हें मुसीबत के घर में से निकाल के उस वादे की सरजमीन पर ले आया। मैं ईमान रखता हूं कि ये साल खुदा ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है, इसीलिए तो वो आपको उस साल में से निकाल के इस साल में लेकर आया है, ताकि खुदा आपको सरफराज करे और आपको बरकत बख्शे। हालेलुया, आमीन। लेकिन इसके साथ साथ हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि वो मुल्क पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। वो सरजमीन कैसी है? पहाड़ों और वादियों की सरजमीन है। यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे मूसा मुल्क मिस्र और मुल्क कनान की जो सरजमीन है उसका जियोग्राफियाई तस्वीर, वो पिक्चर उन्हें दिखा रहा है। तो जियोग्राफियाई लिहाज से है कैसे, क्योंकि अभी वो मुल्क कनान में पहुंचे नहीं है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो पहाड़ों और वादियों की सरजमीन है। अब मुल्क मिस्र को तो वो जानते ही थे, क्योंकि मुल्क मिस्र में
कई सौ साल उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। आपके पादरी साहब भी कितनी बार हो गए हैं? गए हैं जी ना? आपके पास तो सब कई बार गए हैं। अब यहां पर मिस्र की सरजमीन जो है उसकी एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखाता चलूं, बताता चलूं कि मिस्र की सरजमीन की जो पिक्चर वो है कैसी। मिस्र का अगर आप उस पर गौर करें, उसकी सारी हिस्ट्री पर गौर करें, तो उसका तकरीबन 90% हिस्सा जो है वो मैदानों और सहराओं पर मुश्तमिल है। और मिस्र के अंदर इब्तदाई दौर में जिंदगी का नामो निशान मौजूद नहीं था। उसके बाद मिस्र में से सिर्फ एक दरिया निकलता है और उस दरिया का नाम है दरियाए नील। और ये जो दरियाए नील है ये तकरीबन 6695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया का तवील दरिया है और एक लंबा चौड़ा दरिया है और तकरीबन 11 ममालिक में से होकर ये गुजरता है। कितने? 11 मुल्कों में से होकर ये मिस्र की सरजमीन तक पहुंचता है। इसका एक हिस्सा अफ्रीका का एक मुल्क है रवांडा। पिछले 3-4 माह पहले मैं उस मुल्क में था, बड़े क्रूसेट करने के लिए गया था। एक हिस्सा इसका रवांडा से निकलता है, दूसरा हिस्सा इसका अफ्रीका का एक मुल्क है इथियोपिया। पिछले साल में इथियोपिया में भी था। एक इसका हिस्सा वहां से इथियोपिया से निकलता है और उसके बाद ये मिस्र की सरजमीन तक पहुंचता है। और मिस्र की ज्यादातर आबादी जो है ये दरियाए नील के किनारे और उसके इर्द गिर्द ही आबाद है। अगर ये दरियाए नील खत्म कर दिया जाए तो इसका मतलब है मिस्र में से जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कलाम मुकद्दस में से मुल्क कनान की जमीन पर गौर करें तो हमें कलाम मुकद्दस यशवा की किताब और उसके पहले बाब के अंदर ही हमें उसकी सारी हिस्ट्री जो है वो मिल जाती है। तीसरी चौथी आयत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुल्क कनान की जो सरजमीन है वो कहां पर है, वो किन किन दरियाओं पर लगती है और उसका एरिया कितना है। ये हमें बाइबल मुकद्दस में, और सबसे बड़ी बात हमें इस्तिस्नास की किताब के अंदर ही पता चल जाता है कि वो सरजमीन कैसी है। वो ज़रख़ेज़ जमीन है और पहाड़ों और वादियों की जमीन है। आमीन। लेकिन याद रखिए 2 से 3 बातें जो खुदा ने मेरे दिल में आज आप लोगों के लिए डाली हैं कि अगर खुदा कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र में लेकर गया है तो उसकी वजह क्या है। अगर आज खुदा आपको उस साल में से निकाल के इस साल में लेकर आया है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले मैं उन 2 बातों पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं जो भी हमने कलाम मुकद्दस में सुना कि वहां पर दूध और शहद बहता है। मैं तकरीबन 43 ममालिक में मनादी कर चुका हूं, 43 मुल्कों में मैं घूमा हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई मुल्क नहीं देखा जिसमें दूध और शहद का दरिया बहता है। मैंने नहीं देखा। कभी आपने देखा हो, कभी सुना हो? ऐसा नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में इसको बयान करने की एक वजह सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता। हम समझते हैं कि हाँ हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां पर दूध का दरिया या शहद का कोई नदी या कोई दरिया बहता हुआ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जो दूध और शहद का जिक्र किया गया है कि उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, उसकी एक खास वजह है। सुनिए, और वजह मैं आज आपको सादा से लफ्जों में समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी कि उसकी वजह क्या है। नंबर 1 सुनिए, दूध का जो जिक्र हमें मिलता है उसकी वजह क्या है। कलाम मुकद्दस में हमने सुना
वो जमीन जरखेज पहाड़ों और वादियों की सरजमी है। आप मरी जाते हैं, अक्सर आपके पादरी साहब बड़े जाते हैं मरी, ऐसी है जी, हर महीने 2 महीने पर ये हफ्ता सब मरी पहुंचे। अगर आप कभी मरी गए हो, हो सकता कभी चर्च में गया कि नहीं, चर्च ले गए हो कि नहीं, इन्होंने ले जाओ। कभी आप मरी गए हो तो आपने देखा हो पहाड़ों के ऊपर आपको दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। ऐसे है, ऐसे है। जब दरख्त होंगे तो यकीनन उन पर शहद के छत्ते भी होंगे। अगर जंगलात नहीं है, दरख्त नहीं है, तो शहद की मक्खियां कहां से आएंगी, शहद के छत्ते कहां पर होंगे। अगर जंगलात हैं, अगर दरख्त हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर शहद के छत्ते जो है वो वाफर मकदार के अंदर है। अगर जमीन सरखेज है तो इसका मतलब है कि उस जमीन में चारा जानवरों के लिए वाफर मकदार के अंदर है। अगर चारा वाफर मकदार में होगा तो यकीनन वहां पर भेड़ बकरियां गाय बैल वाफर मकदार में होंगे। अगर भेड़ बकरियां वाफर मकदार में हैं तो यकीनन वहां पर दूध जो है वो वाफर मकदार में होगा। अगर शहद का छत्ता वाफर मकदार में है, अगर शहद की मक्खियां वाफर मकदार में हैं, तो इसका मतलब है जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतने ज्यादा छत्ते होंगे, और जितने ज्यादा शहद के छत्ते होंगे उतना ही ज्यादा शहद भी वहां पर मौजूद होगा। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि वहां पर दूध और शहद बहता है, यदि कि चरागाह बहुत है, वहां पर जानवरों की अफजाइश बहुत होगी। अगर जानवरों की अफजाइश होगी तो तुम्हारे पास दूध भी होगा, अगर शहद के छत्ते होंगे तो तुम्हारे पास शहद भी होगा। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम जो है ये सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि उस जमीन पर जो उस सरजमीन पर हमें चरागाह वाफर मकदार में नजर आती है, वादियां नजर आती हैं, जंगलात नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, और इसी तरह हमें खुदा का कलाम पूरा होता हुआ नजर आता है कि उस जगह पर दूध और शहद बहता है। हालेलुया। अगर अब समझ आइए, अगर कोई आपसे कभी सवाल कर ले कि आपकी बाइबल में लिखा है कि वहां पर दूध और शहद बहता है, तो ये कहां पर बहता है हमें दिखाइए, तो आप उन्हें बड़ी खूबसूरती से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि खुदा ने हमें ये एग्जाम्पल दी है, बताया है कि वहां पर क्या क्या होगा। और ये बातें खुदा ने इसलिए की कि वहां पर हमें जंगलात नजर आते हैं, दरख्त नजर आते हैं, जमीन जरखेज नजर आती है। अगर जमीन जरखेज होगी तो पैदावार ज्यादा होगी, हमारे पास अनाज होगा, हम मोहताज न रहेंगे, हम बेकारी न रहेंगे, हम दूसरों से मांगने वाले न रहेंगे, बल्कि खुदा हमें खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। दूसरी बात, अगर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो फिर मत्ती की बात लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसकी 25वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह जब वो बातें कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपनी जान की फिक्र ना करो। अब मुल्के मिस्र से निकलने के बाद मूसा जब उन्हें बारहा गाइड कर रहा था तो उसका मतलब इस बात का यही था कि वो उन्हें बार बार कहता था सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करो, सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करो। फिर हमें आगे मत्ती की बात लिखी गई अंजील के अंदर यीशु मसीह इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं, अपनी जान की फिक्र ना करना। फिर उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं और ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, लेकिन खुदा फिर भी उन्हें खिलाता है, खुदा फिर भी उन्हें खिलाता है। अब कौम बनी इस्राएल जो मुल्क मिस्र के अंदर गुलामी में थे, अब अपनी जिंदगी को पालने के लिए
घराने को पालने के लिए। कलाम में लिखा है वो बीज बोते, वहां पर वो खेतों में नालियां बनाते और पानी देते ताकि किसी तरह से उन्हें खुराक मिले और अपने घराने की परवरिश करें। लेकिन खुदा जब उन्हें वहां से निकालता है तो उन्हें एक बात कहता है कि मुझ पर तवक्कल करना। और उसका सबूत खुदा ने क्या दिया? वो रास्ते में थे तो आसमान से उनके लिए मन बरसा, उन्हें गोश्त खाना था तो खुदा उनके लिए बटेरे ले आया। फिर अगले एदामा में हमें यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक कर दी। उसने कहा अपनी जान की फिक्र ना करना, हवा के परिंदों को देखो। पुराने एदामा के अंदर तमाम बनी इस्राएल ने जंगल के अंदर वहां पर खेती बाड़ी थोड़ी की थी। मन कहां से बरसा? आसमान से। मन कहां से बरसा? उन्होंने कोई जाल लगाकर बटेरे नहीं पकड़ी, खुदा उनके लिए खुद लेकर आया। वो खुदा जो आपको उस साल में से निकाल के इस साल के अंदर लेकर आए, याद रखिए आज आपके लिए ये पैगाम है, खुदावंद पर तवक्कल कीजिए। खुदावंद आपके लिए अपने आसमां को खोलेगा। उसने यशुआ से कहा खौफ ना खा, दलेर हो जा, जैसे मैं मूसा के साथ था। अगर खुदा गुजरे साल में आपके साथ था तो क्या खुदा इस साल में आपको छोड़ देगा? अगर आप समझे एक बात को कि अगर आप उस साल में से निकल के आए, वो साल आपके लिए दुखों का साल हो सकता है। मुझे नहीं पता किस लिए था, लेकिन हो सकता है। और कई ऐसी बहनें और कई ऐसे भाई हैं जिनके इस साल के आगाज में ही उनकी जिंदगी में दुख आए हैं, लेकिन इसके साथ आज तसल्ली की बात आपके लिए करना चाहता हूं। ज़बूर 84 के अंदर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसकी 6ठी आयत में, वो वादी बका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते। अब वादी बका का मतलब है आंसुओं की वादी, रोने वाली जगह, और उस जगह पर खुशहाली है। अगर कलाम मुक़द्दस को गौर से आप सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे। सुनिए, अगर कलाम ये बयान करता है कि वो वादी बका से गुजरकर उसे चश्मों की वादी बना सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर खुशहाली है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर पानी के चश्मे नहीं है, लेकिन खुदा ये कहता है कि ईमानदार जब उस जगह से गुजरेंगे तो खुश्क जगह को क्या बनाएंगे? वो चश्मों की जगह बनाएंगे। वो साल जिसमें से आप निकले हैं, हो सकता है ये साल भी आपको वैसा ही नजर आ रहा हो, लेकिन जब आप इस साल में दाखिल हो चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मसीह पर भरोसा करते हैं, अगर आप उस पर तवक्कुल करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप इस साल को अपने लिए बरकत साल बना सकते हैं। अगर ईमानदार ज़बूर 84 के अंदर वादी बका को चश्मों की जमीन बना सकते हैं, तो आज का ईमानदार, आज का बिलीवर, यीशु पर भरोसा रखने वाला, यीशु मसीह का फॉलोअर, जिसने नई जिंदगी का आगाज किया है, जो यीशु मसीह का ताबेदार है, याद रखिए इस साल को वो अपने लिए बरकत का, तरक्की का, सरफराजी का साल बना सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए और तसल्ली की बात, आखिरी वर्ष इस्तिस्ना के 11वें बाब की आखिरी वर्ष सुनिए। 12वीं आयत जो मैंने पढ़ी थी आखिरी, उस पर बात करके वाइंड अप करूंगा। इसमें लिखे उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की, साखरिया चर्च, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मुल्क पर
खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, यानी खुदावन का ध्यान उस मुल्क पर लगा रहता है जहां पर ईमानदार हैं, जहां पर उसके लोग हैं। अब आप जब उस साल से निकलकर इस साल में दाखिल हुए हैं, आप मसीह के लोग, आप खुदा के लोग, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा पर भरोसा रखने वाले, तो कलाम ये बयान करता है कि उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, लिखा है साल के शुरू से साल के आखिर तक, साल के शुरू से साल के आखिर तक, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक खुदावन की आंखें आप पर लगी रहती हैं, क्योंकि आप खुदा के बरगजीदा हैं और खुदा की तवज्जो आप पर रहती है, क्योंकि उसने आपके लिए अपने बेटे यीशु मसीह का फिदिया दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी बात जो है वो सुनिए, वो मुल्क किसका था? हकीकत में वो खुदा का है, और खुदा ने वो कीमती जगह जहां पर दूध और शहद बहता है वो अपने लोगों को दी है। अब जब खुदावंद की वो कीमती चीज है, तो क्या खुदा अपनी आंखें उस पर से हटाएगा? क्या खुदा अपनी आंखें उस पर से हटाएगा? चर्च, क्या खुदा अपनी आंखें उस पर से हटाएगा? लेकिन आप इससे भी बाबरकत हैं, खुदा ने आपको इससे भी भरकर कीमती चीज दी हुई है। और वो कीमती चीज क्या है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारी कीमत अदा की गई है, और सोना चांदी तुम्हारी कीमत नहीं, बल्कि उसके बेटे का लहू तुम्हारी कीमत है, और उसने कीमत अदा की है। और जब उसने इतनी भारी कीमत अदा की है, तो क्या कभी खुदा अपनी आंखें आप पर से हटाएगा? कभी हटाएगा खुदा? यहाँ पे तो किसी का छोटा सा गोल्ड का रिंग हो ना, ऐसे करके बहन आटा गूंदती 8 बार उसको भी देखती कि आगे पीछे ना हो जाए। तो फिर खुदा ने तो सोने चांदी से बढ़कर आपकी कीमत अदा की। क्या खुदा कभी अपनी आंखें आपके से हटा सकता है? क्योंकि आप उसके लिए इंतहाई कीमती हैं, आप उसकी कीमती बेटियां हैं, आप उसके कीमती बेटे हैं। और फिर कलाम तो इस बात को बयान करता है, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक उसकी तवज्जो उस पर रहती है। और याद रखिए, अगर खुदा की आंखें आप पर लगी हैं, तो वो किस तरह आपको मुसीबत में रहने देगा, वो किस तरह आपको दुख में रहने देगा, वो किस तरह आपको गम में रहने देगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी पर तवज्जो कीजिए कि क्या मैं उसका खून खरीदा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजार रहा हूं? अगर आपकी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक है, तो फिर आप पर खुदा की आंखें लगी हुई हैं। और मुबारक है वो शख्स जिस पर खुदा की आंखें लगी हों। खुदा उसे कभी गम में, दुख में, मुसीबत में न रहने देगा, बल्कि खुदा उसे ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे।